Basically, right now we'll be seeing that in what kind of graphs to find the area we use y dx, in what kind of graphs to find the area we use x dy, and how to decide that where do we have to use x dy to find the area and where do we have to use y dx to find out the area. Now, the most important thing over here is, the most important factor over here is convenience. Now, what is convenience? Convenience means the method which allows us to calculate the area in the most easiest way possible. Like, let's suppose we have a graph, okay, like the graph in front of us. Now, in this graph, as we can see, we have a graph where this line is x is equal to y plus 4. Okay, this line we have drawn, and there is another we have a parabola of this kind from here to here, we can see that. So now we have to find out the area, this area we have to find out. So if we have to find out this area, we can as we can see, we usually do y dot dx, right? We usually do y dot dx. So y dot dx, what does it mean? It means that area with respect to the x axis, whatever is in the d term. No, like agar y dot dx if we are finding, it means that we are finding the area with respect to the x axis. If we are finding x dot dy, it means that we are finding the area with respect to the y axis. So let's say हम लोग majority time तो हम लोग x के लिए ही करते हैं, और एरिया निकालने का मीनिंग क्या होता है? एरिया निकालने का मीनिंग होता है कि let's suppose we have this coordinate axis and let's suppose we have any graph like this and we are finding out, let's suppose this is the coordinate axis, okay, we are finding out the area. Let's suppose y dot dx if we are trying to find out इस ग्राफ का, तो y dot dx implies what कि हम लोग x पे पर मान लो कि हम लोग को x1 से लेके x2 के बीच में, let's say this point is x1, this point is x2, तो x1 और x2 से एक पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉप किए हम लोग x एक्सिस पे, जब हम लोग को y डॉट dx निकालना था. अब जब x डॉट dy निकालना होगा तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे. इसका जस्ट अपोजिट क्या करेंगे? मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है. अब हम लोग को अगर निकालना है एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो वी विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस टू द y एक्सिस. तो ये एरिया होगा, दिस इज़ y डॉट dx. सो बेसिकली अब जैसे ये क्वेश्चन जो ग्राफ हम लोग के सामने है, इसमें हम लोग क्या करें? कन्वीनियंस हम लोग को देखना है. तो कन्वीनियंस इफ़ वी हैव टू सी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग पहले सोचेंगे कि अच्छा अगर हम लोग यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर y डॉट dx लगाने का कोशिश करेंगे, दिस पैराबोला माइनस दिस लाइन, तो हम लोग को कितना दूर का एरिया मिलेगा? वो करने से इतना दूर का एरिया मिलेगा, यहाँ पे इतना दूर का एरिया मिल पाएगा. ये एरिया तो मिल ही नहीं पाएगा नीचे वाला. अंडरस्टैंडिंग? हम लोग को इतना दूर का एरिया तो मिल जाएगा, इतना दूर का एरिया. दिस पैराबोला माइनस दिस लाइन करने से इतना दूर का एरिया मिलेगा. ये तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम लोग तो एक्स एक्सिस पे लाइंस ड्रॉप किए जो, तो वी डिड नॉट गेट दैट एरिया. बिकॉज वाई वी डिड नॉट गेट दैट एरिया? बिकॉज वो एरिया में हम लोग को तो नहीं एग्जैक्टली वी डोंट नो कि वहाँ पे या तो क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन बड़ा है हम लोग को नहीं पता. जो ऊपर रहता है हम लोग उससे ही ना छोटे वाले को, उससे नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये लाइन, ये पैराबोला ऊपर है, ये उसके नीचे है, तो दिस माइनस दिस गिव्स अस दिस एरिया. लेकिन यहाँ पर हम लोग को कुछ दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पे हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन ऊपर है कौन नीचे. तो हाउ विल वी डू दैट? तो उसके लिए वी हैव टू डू वन थिंग. अगर हम लोग इसी ग्राफ को एक बार, हर ग्राफ जो हम लोग के सामने आए कन्वीनियंस के लिए, अगर हम लोग ग्राफ को एक बार 90 डिग्री पलट दें, सो टर्न योर फोन 90 डिग्री so that the graph looks looking from here. Turn your graph 90 degrees so that your eye is over here. Okay, your eye is over here. Okay, now turn the graph and see now. So what do we see? Now we will see that all throughout, from starting from here to here, we can see that this line is above and this parabola is below.
So if we do x dot dy in this case, and in x dot dy we know that we'll take the limits of y, not x. So if we do x dot dy, and from where to where? From where to where do we do x dot dy? From here to here. And what do? We find out the, rather than using the x equation, like let's say we have the line ka equation as x is equal to y plus 4. So x is equal to y plus 4, and then the parabola ka equation is what? Y square is equal to 2x. So in terms of x, what will the parabola ka equation come out? In terms of x, it will be y square by 2. So we have to basically do y plus 4 minus this y plus 4 minus y square by 2 dot dy. From where to where? From यहाँ का y to यहाँ का y. यहाँ का y is how much? Minus 2. यहाँ का y is how much? Plus 4. So that integration will give us the area enclosed over here in between this. Now let's say we have another question over here and we have to see उसमें क्या किया जाए. तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ लाइक, अब हम लोग यहाँ पे जब कन्वीनियंस देखेंगे इस ग्राफ में, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इसमें एक्स डॉट डी वाई करने का नीड ही नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? सी, हम लोग जब यहाँ से जब y डॉट डी एक्स करने का कोशिश करेंगे, हम लोग को हर जगह पता चल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो हर जगह कन्वीनियंटली ऊपर है. हम लोग को कहीं भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं अराइज हो रहा है, या कन्वीनियंस हम लोग को ऐसा नहीं है कि फील नहीं हो रहा है y डॉट डी एक्स करने में. तो इस केस में हम लोग y डॉट डी एक्स डायरेक्टली कर लेंगे. y डॉट डी एक्स करेंगे कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम x का वैल्यू 1 to लेके 2 तक, लिमिट्स 1 to 2, एंड दिस स्ट्रेट लाइन माइनस दिस पैराबोला विल गिव अस द एरिया. और यहाँ y डॉट डी एक्स होगा, तो इस क्वेश्चन में y डॉट डी एक्स रादर देन x डॉट डी वाई. ओके, and let's suppose we have another question, let's say of this type. तो इसमें let's say we have this kind of a graph. तो इसके इस ऐसा टाइप का ग्राफ में हम लोग क्या कर सकते हैं? we can directly think over here कि एक चीज़ यहाँ पे ना ध्यान देना है, एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जब हम लोग अभी यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ में सरी जब y डॉट डी एक्स अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, यू माइट थिंक कि अगर यहाँ पर तो हम लोग को पता है कि इतना दूर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में वी कैन क्लियरली सी कि ये ग्राफ ऊपर है, पैराबोला ऊपर है, और हम लोग को कहाँ पैराबोला का ही तो एरिया निकालना है और तो कुछ नहीं. बस ये लाइन जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग को एरिया निकालना है. पैराबोला का यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है. तो हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि हम लोग दोनों पार्ट्स के लिए इंडिविजुअली एरिया निकालें. ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी लेट मी चेंज द कलर, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे दिस पैराबोला को, तो और y डॉट डी एक्स करके, तो मेरे को कितना एरिया मिलेगा? बस इतना एरिया मिलेगा. ठीक है, और नहीं तो हम और क्या तो हमको बस इतना एरिया मिला, तो अब हमको तो टोटल एरिया निकालना था. तो कांट वी डबल दैट एरिया? वी कैन डबल दैट एरिया एंड वील फाइंड आउट द फुल एरिया. और वी कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग, ओवर हियर. व्हाट? अगर और कन्वीनियंट करना है क्वेश्चन को, तो वी कुड सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. From this point of view, let's say our eyes are over here. Okay, see from over here. Now when you see from over here, you will see that we can directly do one thing. ये अगर x डॉट डी वाई के टर्म्स में अगर इसको ट्रीट करें, तो ये इसको कैसे कर सकते हैं? दिस स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज अबव एंड दिस पैराबोला इज़ ऑलवेज बिलो. हम लोग को इतने दूर का एरिया चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए. तो ये जो y का वैल्यू होगा y1 लेट्स सपोज, ये जो y का वैल्यू होगा y2 लेट्स सपोज. अब फ्रॉम y1 टू y2 दिस स्ट्रेट लाइन माइनस दिस पैराबोला का इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x डॉट डी वाई, नॉट y डॉट डी एक्स. मतलब हम लोग को अगर y के टर्म्स में इक्वेशन दिया है तो x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के तब यूज़ करेंगे, एंड y का लिमिट्स डालेंगे फ्रॉम y1 टू y2. तो ये एरिया हम लोग को डायरेक्टली एक बार में मिल जाएगा. और अगर y डॉट डी एक्स कर रहे होते तो हम लोग को डबल करना पड़ता है यहाँ पे पहले, क्या करके इतना दूर का एरिया निकाल के इंटीग्रेटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसको डबल करना पड़ता. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इट ऑल कम्स टू आर कन्वीनियंस. देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग के ऊपर है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं. बट बाकी जो दोनों क्वेश्चंस था
उनमें से एक क्वेश्चन जैसे ये वाला, इसमें इट वाज क्लियर कट सीन कि इसमें वाई डॉट डी एक्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, एंड इसमें 86 वाले में इट वाज क्लियर कट विजिबल कि इसमें वाई डॉट डी एक्स हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, एक्स डॉट डी वाई करना ही पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि एकदम कंपलसरी रहे वाई डॉट डी एक्स ही करना, कुछ में कंपलसरी रहेगा एक्स डॉट डी वाई ही करना, कुछ में वील हैव अ चॉइस। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस ऑलवेज चूज।